ठीक है बेटा, दिस वन इज शोइंग द वाटर एंड दीज ब्राउन पार्टिकल्स आर एक्चुअली द सॉइल पार्टिकल्स है. ये आपका रूट हेयर है एंड दिस येलो इज द एपिडर्मल सेल है. फर्स्ट वाटर विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सॉइल टू जाइलम बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस है. ठीक है, एंड सॉइल हैज हाई कंसंट्रेशन एज वी नो दैट इन ऑस्मोसिस वाटर मूव्स थ्रू हाई कंसंट्रेशन. Water moves from high concentration to low concentration through partially permeable membrane, right? These epidermal cells also have the outer cell membrane which acts as a partially permeable membrane. Now, water will first move from soil into this root hair. Root hair is responsible for increasing the surface area. It increases the surface area to volume ratio for more absorption of water. Water is transported from soil into the root hair, then it moves from root hair into the epidermal cells, as epidermal cells have low concentration of water as compared to this root hair. Root hair has lower concentration as compared to this soil, right? So water moves from soil into the root hair from high to low concentration, and this movement is by osmosis. Then it will move from this root hair into the epidermal cell, because epidermal cells have also low concentration as compared to the root hair, so it will also move by osmosis from high to low concentration. Now here are some of the arrows. These arrows are also showing that these cells have the lower concentration as compared to the epidermal cells. So here the water also moves by osmosis from this cell to this cell. ठीक है, यहाँ पर जो it will move by osmosis into this cell, then from this cell it will move to the next cell, and this movement is because of their concentration gradient. This concentration gradient or water potential of water. ठीक है, water potential is its name indicates that it's the potential or concentration of the water. These arrows are showing that the place or the cell into which the water is moving, it has lower concentration as compared to the previous cell. ठीक है, and the next cell this has the lower concentration, so water moves into this cell, then it moves into the pericycle, right, and then it moves into the endodermis, and ultimately it reaches into the xylem. This one is the, or these cells are the xylem cells. जो आपको cells नजर आ रहे हैं, these elongated, all these are the xylem cells. Ultimately it reaches the xylem cells by the process of osmosis. Right, in the same way mineral salts also diffuse from soil into the xylem, because they are also carried through xylem to different parts of the plant, so they also move by the process of diffusion. Right, soil also has lower concentration. If soil has a higher concentration, it will move by the process of diffusion. If the soil has lower concentration of the mineral salts, then it will move by which process? If the soil has lower concentration of any of the mineral salt, it will move by the process of active transport, utilizing energy which is produced by the living cells, or which are produced by the respiration which is occurring in living cells. Okay, this will move into the root hair, and these are also moved along with the water into the xylem, because they also move into solution form. They make solution with the water and they move into the xylem. They may move by the process of active transport depending upon the concentration, or they also move by, some of the mineral salts also move by the process of diffusion, because they have higher concentration into the soil and they have lower concentration. So in this case they will move by the process of diffusion, and if they have lower concentration into the soil, then they will move by the process of active transport. Ultimately they reaches the xylem. Now we are going to see that how they are carried up into the plants, or at higher or at different parts through xylem है. ठीक है, xylem तक तो it has moved by the process of diffusion, by the process of osmosis. अब हम आगे देखते हैं कि आगे ये बेटा कैसे मूव करता है. ठीक है, xylem से ऊपर जो है it is carried by the process of transpiration. ठीक है, इसमें there is transpirational pull, और transpiration है which is a major force, major factor responsible for transporting water from
सॉइल टू अदर पार्ट्स है. सॉइल से हम जाइलम तक कहते हैं. इट हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऊपर जो ये मूव करता है मोस्टली जो 90% फोर्स होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग वाटर इनटू द जाइलम और टू हायर डिस्टेंसेस. दिस इज द ट्रांसपरेशनल पुल और ट्रांसपरेशन होता है. ठीक है. अच्छा, अब आप इसमें देखें, वी हैव स्टडीड कि हमारे पास दिस इज द वाटर, इट एंटर्स द सॉइल, it enters the root hairs from soil by the process of osmosis. Then it is carried through xylem to different parts of the plants. This elongated part is the xylem. Then it is carried from xylem to different parts of the plants. यहाँ पर आप देखें कि this is the leaf है. अच्छा, जो बेटा वाटर होता है, it is evaporated from the lower side of the leaf. Why it's not evaporated from the upper side? अपर साइड से ये evaporate क्यों नहीं होता? Why it's only evaporated from the lower side? जो लीफ होता है बेटा, at upper side there is cuticle present and cuticle is waxy. We have studied cuticle क्या करती है, ये prevent करती है water loss को. So water is not evaporated, water is not lost from the upper surface, water is only evaporated from the lower surface है. ठीक है. लोअर सरफेस पर देर आर स्टोमेटा प्रेजेंट. स्टोमेटा आर द पोर्स है और ये जो आपका वाटर होता है दैट इज evaporated थ्रू दिस पोर्स. ठीक है. दिस इज द स्टोमेटा. आपका जो वाटर होगा इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू दिस स्टोमेटा. ठीक है. अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि जो वाटर है, अच्छा, ट्रांसपरेशन बेटा क्या है? ट्रांसपरेशन जो है इट्स द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. ठीक है. वाटर इज व्हेन वाटर इज बीइंग evaporated इट्स नोन एज द ट्रांसपायरेशन है. ठीक है. और ये होता कहाँ से है? इट टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा. It occurs to the stomata which are present in the leaves and these are present in the lower side of the leaves है. ठीक है. अब ये वाटर ऊपर तक जाता है किस तरह है? What happens? आप देखें कि हमारे पास जो है we have studied xylem. जो है xylem is a narrow tube. It is considered, या वैसे भी जो xylem है this is the narrow tube. It has narrow diameter, right? And there is water or there are water molecules present. Inside this there are water molecules present together which are making a channel. ठीक है. कंप्लीट आपका ये चैनल बन जाता है. इसमें जो है इफ इट वुड हैव अ ब्रॉडर डायमीटर तो व्हाट वुड हैव हैपन, जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे वुड हैव scattered, dispersed, they would not have made a complete channel, they would not have stayed one above the other. जिस तरह इसमें है आपको नजर आ रहे हैं, they are making a complete channel one above the other. ठीक है. अच्छा, there is also another thing कि there are forces of attraction between these water molecules. ये आपका एक water molecule है, this is another water molecule, this is another water molecule and this is another water molecule. ठीक है. अच्छा, इन बिटवीन दीज वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं बेटा? देयर आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर कीपिंग देम टुगेदर. दीज आर नोन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज बिटवीन द same molecules as water, water, water. These are the same molecules. These forces of attraction are known as the cohesion. Cohesion is the force of attraction which is between the same molecules. So these water molecules are held together by forces between them and these forces are known as the cohesion forces. ठीक है. अच्छा, which help these water molecules in making a channel. ये एक चैनल बन जाता है. अच्छा, इसके अलावा सेकेंड जो चीज है दैट इज कि बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? दे ऑल्सो एडहेयर. ठीक है. एक तो देर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. इसके अलावा जो सेकेंड चीज है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो एडहेयर टू द वॉल्स ऑफ द जाइलम. जाइलम हैज नैरो डायमीटर.
ठीक है, देर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो एक और चीज़ है दैट इज के देयर इज ऑल्सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द जाइलम है। ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स, एक तो दे आर अट्रैक्टेड विद द वाटर मॉलिक्यूल, second water molecule, and there are also forces of attraction between these water molecules and between the xylem walls, इनके बीच में भी क्या है, there are forces of attraction है। And because of these forces of attraction between the water molecules and the xylem vessels, what happens, these water molecules also adhere to the xylem walls, and which also helps in making this complete longitudinal continuous channel। ये जो आपका चैनल बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रेट लाइन में, दे आर एडहेरिंग वन अबव द अदर है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये फिक्स हो जाते हैं, ये फॉल नहीं करते, टिल्ट नहीं करते टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट है, दे फॉर्म अ कंप्लीट स्ट्रेट चैनल है, ठीक है। जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, between the water molecule and the xylem walls, these are known as the cohesive forces, right। आपकी जो adhesive हैं, these are between the adhesive forces are between the same molecule, these are between the water and water molecules, and cohesive forces are between your xylem and water molecules, sorry, these are your adhesive forces, cohesive are between your water and water molecules, and your adhesive forces are between your जाइलम एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो आपके जाइलम के साथ भी अटैच होता है, एंड इट इज ऑल्सो अटैच टू द वाटर मॉलिक्यूल ऑफ the second water molecule. In this way, what happens, a complete straight channel of the water molecule is formed into the xylem है, ठीक है। ये एक चैनल बन गया है। अब क्या होता है, what happens के during transpiration is the loss of water in the form of vapors, and it is transported through stomata। वन मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। यहाँ से अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को अवेपोरेट कर देते हैं या इसको हम रिमूव कर देते हैं, दिस हैज बीन अवेपोरेटेड, ठीक है, दिस इज evaporated by the process of transpiration, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपायरेशन के थ्रू इट हैज बीन evaporated फ्रॉम द स्टोमेटा। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे आपका ये वाला मॉलिक्यूल जो है इट इज evaporated, right, this first one is evaporated, so what will happen, as we have studied that there are forces of attraction, between these water molecules, so that force of attraction will pull the second water molecule above at its place है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपने एक एग्जाम्पल मैं इसमें स्टूडेंट्स को देती हूँ, हम जो है एक लेड वाली पेंसिल यूज करते थे बचपन में, अभी भी आप लोग यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, वी रिमूव वन लेड और फिर हम उसको नीचे से इंसर्ट करते हैं, डू यू रिमेम्बर, याद है किसी को, वो हम एक लेड पेंसिल यूज करते हैं जिसमें उसमें लेड होते हैं, हम अपर जो लेड है उसको रिमूव कर देते हैं, सो व्हाट हैपेंस दैट द एम्प्टी स्पेस इज क्रिएटेड इनटू द पेंसिल एंड वी देन इंसर्ट दैट लेड फ्रॉम द बॉटम है। इन द सेम वे दिस अबव वन वाटर मॉलिक्यूल इज evaporated which creates a space for the water molecule below it है। अच्छा, उसके अलावा स्पेस के अलावा जो है ना, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स, इट ऑल्सो पुल्स द वाटर मॉलिक्यूल बिलो इट है। ये पुलिंग क्यों होती है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जब ये evaporate हो रहा होता है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी होती है जो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल को अबव पुल करती है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, जो नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल है ये आपका ऊपर आ जाता है, इसी तरह जो नीचे इसके नीचे होगा वो ऊपर मूव करता है, ठीक है। ये इस तरह जो है ये इससे नीचे वाला ऊपर मूव करता है, एंड इन दिस वे वन वाटर मॉलिक्यूल जो है ना इट मूव्स अबव, ठीक है, इस तरह मूव करते जाते हैं। और जो आपका, अच्छा, ये मूव करते हैं और व्हाट हैपेंस, जो बिल्कुल नीचे होता है उसमें स्पेस क्रिएट हो जाती है फॉर एन अदर वाटर मॉलिक्यूल टू कम फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स है,
ठीक है, जैसे आपका ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी जो है, लास्ट वाला भी है, ये भी आपका ऊपर मूव कर जाएगा। सो व्हाट विल हैपन कि जो आपकी लास्ट स्पेस है, ये वाली जो प्लेस है वाटर मॉलिक्यूल है इन द एंड, जहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो आपका एंड है इसमें यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाएगी फॉर एन अदर वाटर मॉलिक्यूल टू ऑक्यूपाई। अब ये कहाँ से आएगा? जो हमने सराउंडिंग सेल्स पढ़े थे, पेरिसाइकिल पढ़ा था, कॉर्टेक्स पढ़ा था, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स पढ़े थे, वहां से जो ना वन वाटर मॉलिक्यूल विल एंटर इनटू द जाइलम है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा और इनटू द जाइलम है या above या इन हाई एट हाई प्लेसेस इट इज कैरिड बाय द ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अच्छा, अब ये ट्रांसपरेशन की वजह से एक क्या हो जाता है, अ पुलिंग फोर्स इज क्रिएटेड विच पुल्स दिस लोअर मॉलिक्यूल अबव है। दैट पुलिंग फोर्स इज नोन एज द ट्रांसपरेशनल पुल है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से जो वाटर मूव कर रहा होता है दैट मूव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, और या फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द वाटर अबव या एट हाई डिस्टेंसेज, इट्स द ट्रांसपायरेशनल पुल है। ठीक है, पुल, ट्रांसपरेशनल पुल जो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द evaporation ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल थ्रू स्टोमेटा, इट्स नोन एज द, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द जाइलम है। ठीक है बेटा, मैं दोबारा एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर देती हूँ। जो वाटर है हमारे पास वो मूव करता है, देर इज वन ट्रांसवर्स मूवमेंट। ट्रांसवर्स मूवमेंट होती है सॉइल टू जाइलम। ठीक है, सॉइल टू जाइलम जो ट्रांसवर्स मूवमेंट हो रही होती है, दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एज द सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन, इट मूव्स इनटू द root hair by root hair which has the lower concentration by osmosis. ठीक है, and then it moves from root hair into the epidermal cells, then from epidermal cells it moves into the cortical cells from higher to lower concentration. First cell it has a lower, then next it has even lower than this one, and ultimately it reaches into the xylem है। अब xylem में ये कैसे move करता है? xylem में it moves by the process of transpiration. Transpiration is the loss of water in the form of vapors, right, and it occurs through the pores है, stomata which are present into the leaves है। एक मॉलिक्यूल evaporate हो जाता है, ठीक है, then it creates the pulling force और it creates a space for the other water molecule है। अच्छा, अब one water molecule is evaporated by the process of transpiration which creates a space for the second water molecule है। ठीक है, अच्छा, second water molecule एक तो space की वजह से ऊपर move करता है, second ये जो move करता है it moves because of the पुलिंग फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वो भी होती है, दैट फोर्स इज नोन एज द कोहेसिव फोर्स। ठीक है, इसको हम कोहेशन भी बोलते हैं और कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं। इसी तरह देर इज ऑल्सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द जाइलम एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स। जाइलम एंड वाटर मॉलिक्यूल्स की फोर्स को हम बोलते हैं दैट्स द एडहेशन, एडहेसिव फोर्सेस, एडहेशन है या फोर्स ऑफ एडहेशन बोलते हैं। अच्छा, इन फोर्सेस का फायदा क्या होता है? एक तो ये दो फोर्सेस होती हैं, जो थर्ड मैंने आपको चीज बताई है दैट इज कि जो जाइलम है इट हैज नैरो डायमीटर। नैरो डायमीटर की वजह से, ठीक है, it has narrow diameter and because of this narrow diameter what happens कि एक हमारे पास water का channel create हो जाता है। here in this diagram you can see कि ये जो बना हुआ है हमारे पास, ये water का, ये कंप्लीट जो है ये वाटर का एक चैनल बना हुआ है इनसाइड द जाइलम है। ठीक है, इसको हम चैनल बोलते हैं इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर है। ठीक है, दे आर नॉट फॉलिंग टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट एंड स्ट्रेट ही है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन द जाइलम है विच कीप देम इरेक्ट। ठीक है, इस तरह हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल अबव मूव करता है। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? एनी इशू? Again, beta, you all are slept. No response. No, miss, no issue. ठीक है, अच्छा, इसको रिवाइज नहीं करना बेटा मैंने क्लासेस में, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। अब लास्ट ही हमारा टॉपिक है। अच्छा बेटा, ट्रांसपरेशन जो है इट इज सिमिलर टू evaporation। ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट evaporation इन केमिस्ट्री एंड also in lower classes you have to keep this evaporation in your mind. Now next we are going to study that there are different factors which are
which affect the transpiration or which affect the rate of transpiration. As I've told you, it's similar to evaporation. So the factors which increases or which affects the rate of evaporation, they will be affecting the rate of transpiration. In this way you have to remember. Okay, अब हमारे पास जो है, आप evaporation में सबसे पहले तो आप ये चीज देखें कि surface area, इफ द सरफेस एरिया इज हाई, तो evaporation हाई होती है या लो होती है? या ये मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि जैसे हमारे पास, इफ यू आर प्लेसिंग वाटर इन अ ग्लास and you are placing water in a dish or in a plate, तो which water will evaporate first? कौन सा वाला वाटर बेटा evaporate होगा? जो आपने ग्लास में रखा हुआ है या आपने जो प्लेट में रखा हुआ है, which one will evaporate first? कोई भी evaporate नहीं होगा. गर्ल्स बेटा प्लीज, आई नीड रिस्पॉन्स. मिस्टर प्लेट में रखा हुआ है. ठीक है, जो हमने प्लेट में रखा हुआ है वो जल्दी एवेपोरेट हो जाता है. हमने कोई चीज ड्राई भी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, वाटर को स्प्रेड कर देते हैं. ठीक है, अच्छा अब इसका रीजन क्या है? जो रीजन है दैट इज के सरफेस एरिया हम इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पर कुछ आपके फैक्टर्स लिखे होंगे या कुछ नहीं लिखे होंगे, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द फैक्टर्स. सरफेस एरिया जो है वो हमारा, ठीक है, सरफेस एरिया हो गया. फर्स्ट इज द सरफेस एरिया. ठीक है, अच्छा, हाउ सरफेस एरिया इफेक्ट्स? इट इज डायरेक्टली, it directly affects transpiration. If the surface area is high, rate of transpiration will be high. If the surface area is low, rate of transpiration will also be low है. ठीक है, अच्छा अब वो प्लांट्स जिनका बेटा लीफ जो है वो ब्रॉडर होता है, ब्रॉड मीन्स दैट दे हैव लार्जर सरफेस एरिया. ठीक है, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज ऑल्सो हाई है. ठीक है, एक तो सरफेस एरिया रीजन होता है ब्रॉडर लीव्स का, और एक जो सेकेंड रीजन होता है वो होता है दैट ब्रॉडर लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, अभी तो हमने सरफेस एरिया स्टडी किया है, सो आई एम रिलेटिंग दिस टू सरफेस एरिया. इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, सेकेंड आप इसमें ये भी रीजन मेंशन कर सकते हैं दैट दे हैव लार्ज स्टोमेटा. ये ठीक है, लोअर साइड है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा. सो बिकॉज ऑफ हैविंग मोर स्टोमेटा और लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाई होता है. दो रीजन हो गई. अच्छा, सेकेंड अब आप देखिए ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर है. अगर आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है तो देर आर लेस चांसेस ऑफ वाटर टू बी अवेपोरेटेड फ्रॉम लीफ है. अच्छा, अब ये वाटर हमारे पास अवेपोरेट भी क्यों करता है? ये बेटा वाटर अवेपोरेट करता है टू मेक द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इनटू द लीफ इक्वल. जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो वाटर की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है. अब वाटर जो है, इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीफ इनटू द एटमॉस्फेयर. इफ द एटमॉस्फेयर ऑलरेडी हैज वाटर वेपर्स इनटू इट, इट्स ऑलरेडी ह्यूमिड, so there are less chances or there will be less movement of water from leaf into the humid air. तो उस केस में हमारे पास जो ट्रांसपरेशन होती है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है. सो ट्रांसपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी जो है आपकी इन डायरेक्टली और इनवर्सली अफेक्ट्स ट्रांसपायरेशन. ठीक है, it inversely affects the rate of transpiration. If the air is more humid, there will be less movement of water into the atmosphere, and if there is air is dry, उस केस में हमारे पास जो वाटर की मूवमेंट होती है वो ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है. ठीक है, अच्छा अब आप अगर वैसे देखें तो हमारे पास जो अगस्त वाला एटमॉस्फेयर मंथ होता है, अगस्त सितंबर, उसमें जो है, या जुलाई और अगस्त होता है, तो एयर जो होती है दैट इज मोर ह्यूमिड. तो आपने देखा होगा जो बेटा हमें स्वेटिंग हो रही होती है वो अवेपोरेट नहीं होती, पसीना जो है वो हमारा
क्या होता है, अवेपोरेट नहीं होता, वो हमारे स्किन के साथ ही अटैच रहता है। उसका रीजन ये है कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर इतना ज्यादा होता है, तो हमारे स्किन से अवेपोरेशन के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये स्टार्टिंग वाले आपके आएंगे मई जून में होता है, एयर इज मोर ड्राई, तो उस केस में आपने देखा होगा कि हमारा जो है जल्दी से पसीना वगैरह जो है वो अवेपोरेट हो जाता है। या इसके अलावा हम क्लोथ्स वगैरह जो है हम क्या करते हैं, ड्राई करने के लिए डालते हैं, तो वो भी उसके साथ भी सेम ही होता है। जब आपकी एयर ह्यूमिड होती है तो उस केस में वाटर मूवमेंट के चांसेस कम होते हैं, जब ड्राई होती है तो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपका सरफेस एरिया डायरेक्टली इफेक्ट करता है, स्टोमेटा नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो भी क्या करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली इफेक्ट करती है। नेक्स्ट जो है आप विंड स्पीड देखें। विंड स्पीड ये सिंपल हम बेटा करते भी हैं एक्सपेरिमेंट, अगर कहीं पर पानी है तो हम क्या करते हैं, हम ब्लो करते हैं एयर। ब्लो से क्या होता है, वो जल्दी से अवेपरेट या ड्राई हो जाता है। सो इन द सेम वे कि अगर आपकी एयर जो है वो ब्लो कर रही है, ठीक है, ब्लोइंग या मूविंग एयर इज नोन एज विंड है। ठीक है, विंड जो है या ब्लोइंग, आपकी एयर ब्लो कर रही है, मूव कर रही है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो वाटर होता है वो जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। सो इन द सेम केस अगर आपकी विंड है तो उस केस में भी आपका रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो क्या होता है, इंक्रीजेज एज द विंड स्पीड इंक्रीजेज है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा थर्ड आप देखिए लाइट इंटेंसिटी। अब लाइट इंटेंसिटी को हम रिलेट करेंगे बाय फोटोसिंथेसिस। इफ लाइट इज प्रेजेंट, ठीक है, लाइट प्रेजेंट है प्लांट के पास, वाटर भी प्रेजेंट है, सॉइल भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, तो उस केस में ये क्या करेगा, इट विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। more light intensity means that it will carry out more photosynthesis, right? More photosynthesis में क्या होगा, it will use more water। ठीक है, मोर वाटर यूज हो रहा है, तो उस केस में मोर वाटर क्या होगा, वो आपका अवेपोरेट होगा, या मोर वाटर आपका इसमें होता है, लाइट इंटेंसिटी में ये होता है। या आप इसको एक और वे में भी रिलेट कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो रिलेट दिस, जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, एक तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा होता है, तो उस केस में हमारे पास वाटर जो है वो ज़्यादा क्या होता है, आपका अवेपोरेट करता है। एक तो यू कैन रिलेट दिस टू टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्योंकि लाइट इंटेंसिटी की वजह से ज़्यादा होता है तो उसमें हो रहा होता है। या सेकेंड आप इसको रिलेट करेंगे कि एज दे आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इट मीन्स कि उनके स्टोमेटा जो है वो ओपन है, स्टोमेटा ओपन है, तो देर इज अ पैसेज फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स टू बी एवेपोरेटेड, तो उस केस में भी वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एवेपोरेट होते हैं। लाइट इंटेंसिटी इन अदर वर्ड्स डायरेक्टली इफेक्ट करती है, अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी ज़्यादा होगा। इफ तो लाइट इंटेंसिटी विल बी लो, द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन विल ऑल्सो बी लो है। ठीक है, अब रीजंस भी आपने बेटा देनी है। एक तो आप इसको बता देंगे कि इट इज अफेक्टिंग डायरेक्टली। रीजंस मैंने आपको दो बताई हैं कि इफ दे आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, तो उस केस में हमारे पास ज्यादा होगा रेट। ठीक है, ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज टोमेटा विल बी ओपन। स्टोमेटा क्यों ओपन होंगे, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, और वो कहाँ से आएगी, वो ओपन स्टोमेटा के थ्रू आएगी। ठीक है, स्टोमेटा ओपन होंगे तो इट मीन्स दैट देयर इज अ वे फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स टू बी एवेपोरेटेड, और वो स्टोमेटा के थ्रू एवेपोरेट हो जाएंगे, तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन हमारा हाई होगा। सेकेंड जो है लाइट इंटेंसिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेम्परेचर। जैसे लाइट इंटेंसिटी आप देखें कि नून में जो है इट्स हाई, हाई लाइट इंटेंसिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी हाई होता है, तो हाई की वजह से जो है आपका रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो भी हाई हो जाता है। इस तरह भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बट इट वुड बी बेटर इफ यू वुड रिलेट इट टू द फोटोसिंथेसिस है। अच्छा, अब आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखिए इसमें बेटा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ह्यूमिडिटी है। ठीक है, ह्यूमिडिटी के अलावा जो है नीचे हमारे पास, या ओवरऑल हम लिख देते हैं, वन सरफेस एरिया, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोमेटा, देन लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर भी बेटा ये क्या करता है, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इसको अब आपने और से देखना है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है ट्रांसपरेशन को। ठीक है, अच्छा अब ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है
डायरेक्टली कर रहा होता है, इट मीन्स कि अगर टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ आपका ट्रांसपरेशन भी हाई होगा. इफ द टेम्परेचर इज लो द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन इज ऑल्सो लो है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें बेटा आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखनी है कि टेम्परेचर इज हाई द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन इज हाई, टेम्परेचर इज लो द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन इज लो. बट ये हमारे पास ट्रेंड चलता है अप टिल 40 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड है. 40 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव इफ यू फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर 50 कर दें, 60 कर दें, 70 कर दें, तो हमारा रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो डिक्रीज होता है. ठीक है. एनी रीजन और व्हाट डू यू थिंक क्यों डिक्रीज हो जाता है? ठीक है. वो लिमिट क्या है? जैसे आपका 40 टू 45 आप कर दें, 45 आपका जो टेम्परेचर है डिग्री, अच्छा आपका जो है 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज, ट्रांसपरेशन इंक्रीज होता है. आफ्टर दिस टेम्परेचर आपका क्या होता है? ट्रांसपरेशन जो है वो आपका डिक्रीज होता है. अच्छा, अब ये बेटा डिक्रीज क्यों होता है? द रीजन इज because there is not only one process which is occurring in plants. There are many processes which are occurring